यीशु। आज हम यूहन्ना का 10 अध्याय को देखने वाले हैं। तो अभी हमरा जोहन 10 अध्याय देखूं। और हम लोग यूहन्ना का 10 अध्याय उसका हम लोग 22 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। तो अभी हमरा जोहन 10 अध्याय 22 থেকে 30 অবধি দেখুন। तो भाई पढ़ो राजवंशी में। यूहन्ना 10 अध्याय 22 से लेकर 30। ইয়ার পাছত জারের দিনত জেলা জেরুসালেম মন্দির গোড়ার পর্ব নাসিলে একদিন যিশু মন্দিরে চত্বরত সলোমনের বারান্দাত হাঁটি বেড়ে ধরছিলেন। সেই সময় যিশু জিহুদি নেতালা উহার চাইরোপাকে জড়ো হইয়া উহা কইলেক, আর কতদিন তুই হামার সন্দেহের মধ্যে থুবু? তুই যদি ভগবানের বাছাই করা রাজা হইস, তাহলে আমার লাগ পরিষ্কার করি ক। যিশু কইলে, মুই তো তোমার লাগ কইচুং, কিন্তু তোমার লা বিশ্বাস করেন নাই। মুই মোর স্বর্গর বাপের নামে জেলা আচানক চীনের কাম করং, হেলে মোর বিষয়ে সাক্ষী দিবার ধরছে, কিন্তু তোমার লা বিশ্বাস করেন না, কেননা তোমরা মোর ভেড়ার পালের ভেড়া না হন। মোর ভেড়ালা মোর গোলার আওয়াজ শুনে মুই উমার লাগ জানং, আর উমরা মুখ দেখিয়া মোর পাশে পাশে চলে। মুই উমার লাগ অমৃত জীবন দেন। উমরা কোনোদিনও নষ্ট হওয়ার না হয়। মোর হাত থাকি কাঙ উমার লাগ কাড়ি নিবার পাবে না। মোর স্বর্গের বাপ যাই উমার লাগ মুখ দিয়া দিছে, উহাই সুগারে থাকি মহান। কাঙই বাপের হাত থাকি কোনো কিছু কাড়ি নিবার পারিবে না। মুই আর মোর স্বর্গের বাপ আমরা একই। हो गया जी 30 हाँ 30। फिनिश्ड। कि परमेश्वर आपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। ঈশ্বরের বাক্য পড়ে এই বাক্যটা পড়ো আর ঈশ্বর আশীর্বাদ দিবে। तो आज हम अच्छा चरवाहा के बारे में देखने वाले हैं। তো আজ আমরা ভালো রাখালের বিষয়ে দেখব। और ये चरवाहा कैसा है हम देखने वाले हैं। তো আজ আমরা রাখাল কেমন হবার নাকি আজ আমরা এটা দেখব। तो एक अच्छा रखवाला है और बुरे रखवाला भी है। তো একজন ভালো রাখাল থাকে আর একজন মন্দ রাখালও থাকে। तो वो अच्छा वाला रखवाला जो है वो कैसा है, अच्छा चरवाहा के बारे में हम लोग कुछ चीजें देखने वाले हैं। তো আমরা ভালো ভালো রাখাল কায়, তো এইটার বিষয়ে দেখব। और बुरा रखवाला कैसा है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। और खराब राखाल সম্বন্ধে এটাও আমরা দেখব। और फिर जो भेड़े हैं जो है, ये भेड़े भी कैसे हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। আর ভেড়া সম্বন্ধেও আমরা দেখব, ভেড়া কেমন। और ये पूरा 10 अध्याय को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे आज। আজ আমরা এই দেখি চেষ্টা করব পুরো। और सबसे पहले अच्छा रखवाला कैसा है हम लोग देखेंगे। তো প্রথমে আমরা ভালো রাখাল সম্বন্ধে দেখব। तो 2 पद को जरा देखो, वहां पर अच्छा रखवाला के बारे में बोला है। দুই পদক দেওয়া আছে ভালো রাখাল সম্বন্ধে, কিন্তু যায় দুয়ার দিয়া সন্ধ্যায় উহাই ভেড়ার রাখাল। तो अच्छा चरवाहा जो है वो द्वार से भीतर प्रवेश करता है। তো ভালো যায় রাখাল তাই দুয়ার দিয়া ভিতরে যায়। तो क्या है कि अगर आपने ये चरवाहों को
देखा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जहां से मैं आया हूँ वहाँ बहुत सारे चरवाहा हम लोग देखते थे। তোমরা রাখাল দেখছেন কি নাই তো জানো না, কিন্তু এই কাগজের থেকে আছে ওটা কিনা রাখাল ছিল, কাগজ দেখছি। और ये चरवाहा के पीछे बहुत सारे भेड़ बकरी चलता था। তো এই রাখালের পাশে পাশে অনেক ভেড়া, অনেক ছাগল তো পাশে পাশে যায়। और रात को जब वो लोग रुकते हैं एक जगह में तो एक बाउंड्री बनाते हैं, और वो बाउंड्री के भीतर में ये सारे जो भेड़ बकरी जो है उनको रखते हैं। তো রাতের জেলা রাখাল কোনটে বিশ্রাম করার জন্য দাঁড়ায়, ওটা কিনা একটা বাউন্ডারি বানায় আর ওইটার ভিতরত ভেড়া আর ছাগল গিলা থয়। और वो बाउंड्री में एक ही गेट होता है, और वो गेट जो है ये खुद चरवाहा होता है। আর এই বাউন্ডারির ভিতর ছাগল ভেড়া থাকে, আর বাউন্ডারির যে একটা দরজা থাকে ওইটার দরজা এই রাখালটা নিজে হয়। और दूसरा बात हम लोग 3 पद में देखते हैं कि ये अपने भेड़ों को अपने नाम से बुलाता है। দ্বিতীয় আমরা দেখবো রাখওয়াল ভেড়া গুলা নাম ধরে ডেকায়। देखो वो 3 पद को हम लोग पढ़ते हैं, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को ले जाता है। ভেড়ার খোয়ার যায় পাহারা দেয়, উয়াই রাখালক দুয়ার খুলি দেয়। ভেড়ালা উয়ার ডাক শুনে আর ওই রাখওয়াল নিজের ভেড়ার লাগ নাম ধরি ডেকায় বাইরে নিয়ে যায়। तो ये अच्छा चरवाहा जो है अपने भेड़ बकरियों का नाम वो जानता है। তো ওই ভালো রাখাল যায় আছে, উয়াই ভেড়া আর ছাগলের নিজের নাম জানে। अभी जो लोग पालतू बिल्ली या कुत्ता रखते हैं वो अपने बिल्ली कुत्तों का नाम भी रखते हैं। এই যায় বিলাই কুকুর পুষে তো আমার কি করে নামও রাখে বিলাই কুকুরের। अभी राजवंशी कल्चर में आप लोग अपने बकरियों के लिए नाम रखते हैं क्या नहीं मुझे मालूम नहीं। হ্যাঁ রাখতে হয় রাখতে হয়। रखते हैं, ओके गुड। तो आपको पता है कि आपका भेड़ बकरी कहाँ पर है, आपको मालूम है। তো আমার ভেড়া ছাগল গুলা করে থাকে আমার সেটা জানি। और आप जब मालिक है तो आप अपने भेड़ों को या बकरी को बुलाते हैं, वो आपका शब्द को सुन के वो आता है। তোমরা যেলা তোমার ছাগল বা ভেড়া গুলা দেখান সেলা ভেড়া ছাগল গুলা আইসে তোমার থেকে। तो ये जो चरवाहा जो है उसको जानता है कि कब उसको भेड़ बकरियों को बुलाना है, तो वो जब बुलाता है तो भेड़ बकरे आते हैं। তো फिर से बोलिए अंकल एक बार। वो अपना ठीक समय पर बुलाता है चरवाहा। ও রাখাল জেলা ডেকেন নাকবে সেলা ঠিক সময় ডেকায় তার ভেড়া গুলা ছাগল গুলা। तो ये भी अच्छा चरवाहा का काम है, वो अपने भेड़ बकरियों को बुलाता है। তো এটাও একটা ভালো রাখালের কাজ, মানে ভালো রাখাল এর বিষয় দেখতে পাই যে ও তার ভেড়া ছাগল গুলা ডেকায়। अभी तीसरा चीज हम लोग ये अच्छा चरवाहा के बारे में देखते हैं, वो 4 पद में हम लोग देखते हैं। তো এই 3 নম্বর জিনিস আমরা দেখবো ভালো রাখালের বিষয়ে। তো 4 পদের দেওয়া থাকে আছে। ये 4 पद में ऐसा लिखा है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। ওই নিজের শখ ভেড়ালা বাইর করির পাছত উহার আগে আগে যায় আর ভেড়ালা উহার পাশে পাশে যায়, কেনে না উমরা উহার গোলার আওয়াজ চিনে। तो भेड़ उसके पीछे पीछे चलते हैं। ভেড়ালা উহার পাশে পাশে চলে। तो जो अच्छा चरवाहा है वो सामने से जाता है, जो যার ভালো রাখাল আছে তাই আগত আগত যায়। आगे जाने का कारण यह है कि आगे में अगर कोई खतरा है तो वो खतरे से अपने भेड़ बकरियों को बचाता है। তো আগত যদি কোনো খতরা বা খতরা সমস্যা বা কোনো মানে বিপদ এসে তো
যায় ভালো রাখাল তাই আগত যায় এটা ঠিক করে দেয়। अभी ये इस प्रकार से सोचो, अगर भारत देश का क्रिकेट टीम में कैप्टन जो होता है वो भी सामने से अपने टीम को चलाता है। তো ভারত দেশের যে ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন থাকে তো উভয় আগত যায় क्रिकेट को देखे ने क्या बोलते चालाता है ना। हाँ, तो टॉस के हाँ, लिए जब जाता है, टॉस करने के लिए, तो वो कैप्टन जाता है आगे। হ্যাঁ, তো ক্যাপ্টেন আগত টস করে যায় মানে টিমটা দেখাশোনা করে বা আগত ক্যাপ্টেন করে। और कोई भी इम्पोर्टेंट निर्णय अगर टीम के लिए लेना पड़ता है तो कैप्टन आगे जाता है, वो निर्णय लेता है। কোনো যদি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিবার লাগে তো ক্যাপ্টেন যায় আগত যায় নেয়। वो अभी सोचो, विराट कोहली अभी हमारा भारत देश का कैप्टन है, वो घर पर बैठकर और टीम मैदान पर है, ऐसा तो नहीं चलेगा। তো আমার আমার ভারতীয় ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি তো ঘৰত বসিয়া কোনো ডিসিশন নেয় না, মাঠত যায় টিমের সঙ্গে একসঙ্গে মিলিয়া ডিসিশন সিদ্ধান্ত নেয়। मतलब जमीन का अवस्था क्या क्या है, ये कैप्टन जान लेता है। তো জমির অবস্থা কেমন এটা ক্যাপ্টেন আগত জানে জানে। आगे क्या क्या समस्या है वो कैप्टन जानता है। তো আগত কি কি সমস্যা আসিবে এগুলা এগুলা ক্যাপ্টেন জানে। इस प्रकार से ये अच्छा चरवा जो है, ये सामने से ये अपना भेड़ बकरियों को चलाता है। তো এরকম যে ভালো রাখাল তো ওই আগত যায় ভেড়া বকরি চড়ায়। और अभी हमारा अच्छा चरवा जो है, हम लोग जानते हैं, ये 10 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही अच्छा चरवा हूँ। তো আমার বাইবেলত লেখা আছে প্রভু 11 যীশু पद में, খ্রিস্ট सॉरी, কয় 11 पद में लिखा है। তো এই 11 নম্বর পদত লেখা আছে প্রভু যীশুই ভালো আসল মানে ভালো চরবাহ। हाँ, अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। ভালো রাখাল নিজের ভেড়ালার জন্য নিজের জীবন দেয়। हाँ, तो ये इस प्रकार से हमारा जो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ स्वर्ग पर अब आराम से नहीं बैठा, वो इस धरती पे उतर, जमीन का अवस्था क्या है, पाप कितना भयंकर फैला है, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने आंखों से देख लिया। তো প্রভু যীশু স্বর্গে না থাকিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া দেখিছে যে পাপ কত ভয়ঙ্কর জিনিস। আর ওই তার জন্য ভেড়ালাগ নিজে চালে যাচ্ছে। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ इस 10 अध्याय में बार बार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। তো 10 অধ্যায়ে প্রভু যীশু বারবার কইছে যে মুই মোর ভেড়ালার বাদে জীবন দিবার আছুম। वो 15 पद में भी लिखा है कि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए आया हूँ। তো 15 পদে তো লেখা আছে মুই মোর ভেড়ালার বাদে জীবন দিবার আছুম সপে দিবার আছুম। 17 पद में लिखा है। 17 পদে তো লেখা আছে 18 पद में भी ऐसा लिखा है कि मैं यहाँ पर अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। 18 পদে তো লেখা আছে মুই মোর ভেড়ালার বাদে জীবন দিবার আছুম। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अच्छा चरवा जो है, प्राण देने के लिए, मतलब अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए वो तैयार है। क्या फिर से बोलिए अंकल एक बार। वो प्राण देने के लिए अपना जीवन তো बलिदान ভালো करने के ভেড়া लिए तैयार है। নিজের জীবন দিবার জন্য তৈয়ার মানে রেডি রেডি আছে। हाँ, और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया था अपना जीवन को बलिदान करने के लिए। তো এইভাবে প্রভু যীশু স্বর্গ থাকি পৃথিবীতে এসেছে তার নিজের জীবন দিবার বাদে ভেড়ালার বাদে। और वो प्राण देने के लिए क्यों आया? क्योंकि ये 9 पद में लिखा है, मैं 9 पद को पढ़ रहा हूँ। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा।
ক্যাপ 11 পদ। 9 पद, 9 पद। ওর মুয়ে দুয়ার যদি কাউয়ে মোর মধ্য দিয়া ভিতরত সন্ধ্যায় তাহলে ওয়াই রক্ষা পাবে। ওই ভিতরত সন্ধ্যাবে আর বাইরাত যাবে আর চোরা খাবার জায়গা পাবে। तो द्वार वो है और वो उद्धार भी देता है। তো দরজা ওয়ে আর উদ্ধারও ওয়াই দিবে, যীশু খ্রিস্ট প্রভু। तो प्राण देने का कारण है कि वो उद्धार हमको देता है। তো জীবন দিবার এটাই কারণ যে উদ্ধার দিবে। अभी और एक बात हम लोग ये अच्छा चरवाह के बारे में देखते हैं कि वो हम सबको जानता है। তো ভালো রাখালের বিষয় একটা দেখবো যে ওয়ে আমাকে সবাইকে জানে। अभी 27 पद में मैं पढ़ रहा हूँ। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। মোর বিড়ালা মোর গোলার আওয়াজ শুনে মুই উমাল্লাক জানো আর উমরা মুখ দেখিয়া মোর পাশে পাশে চলে। तो अच्छा चरवाहा जो है, अगर उसके पास 100 भेड़े हैं तो वो सारे 100 भेड़ों का नाम वो जानता है। তো ভালো রাখাল যায় আছে ওয়ার্ডে যদি 100টা ভেড়া থাকে তো 100টারই নাম মুয়ে জানে। वही हमारा प्रभु यीशु मसीह, आज भी वो हम सब का नाम वो जानता है। এরকমই আমার প্রভু যীশু সবারই নাম জানে। वो हर एक का नाम नाम लेकर वो पुकारता है। তো সবারই নাম ধরে ডেকায়। वो अपना बादल को पुकारेगा, बादल आओ मेरे पीछे। তো কবি বাদল আয় মোর পাশে পিছনে আশেপাশে। वो सत्यजीत को पुकारेगा, सत्यजीत आओ मेरे पीछे। তো সচ্চরিত ডেকাবে যে আয় মোর পাশে পাশে। और एलाइजा को पुकारेगा, एलाइजा आओ मेरे पीछे। তো এলাইজা কবে যে আয় মোর পাশে। तो प्रभु यीशु मसीह सबका नाम जानता है। প্রভু যীশু খ্রিস্ট সবারই নাম জানে। और अगर प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आपको पुकार रहा है, तो आपको उसका शब्द को सुनना है और उसके पीछे चलना है। যদি প্রভু যীশু খ্রিস্ট তোমাকে ডেকায় তাহলে প্রভু যীশু উহার শব্দ শুনি নেবে এবং উহার বুঝি নেবে যে ডেকাছে। और ये अच्छा चरवाहा से पुकारने के बाद क्या देता है हमको? তো ভালো রাখাল ডেকের পরে আমাকে কি দেয়। और अगर वो बुला रहा है, क्यों बुला रहा है? আর যদি ডেকায় তো কিনে ডেকাছে। क्या फायदा है इसके पीछे जाने का? আহ, তো উহার পাছত যাবার আমার কি কি উম, কি লাভ হবে। तो देखो 28 और 29, 28 एंड 29 हम पढ़ेंगे। তো 28 আর 29 পড়বো আমরা। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे আমি कभी नाश न होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सब से बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। তো মই উমাল্লাক অমৃত জীবন দিম। উমাল্লা কোনোদিনও নষ্ট হবার না হয়। মোর হাত থাকি কাঙু উমাল্লাক কাড়ি নিবার পাবে না। মোর স্বর্গের বাপ যাই উমাল্লাক মুখ দিছে উহাই সোগারে থাকি মহান কাঙুই বাপের হাত থাকি কোনো কিছু কাড়ি নিবার পারিবি না। तो अगर वो बुला रहा है, अगर वो हमको बुला रहा है, नाम लेकर बुला रहा है, तो बुलाने का कारण ये है कि वो हमको बचाना चाहता है। যদি উহাই ডেকাছে তো এইটার কারণ ডেকের কারণ যে উহাই আমাক বাঁচাইতে চায়। वो हमको उद्धार देना चाहता है। তো উহাই আমাক উদ্ধার দিবার চায়। वो अनंत जीवन देना चाहता है। তো উহাই আমাক অমৃত জীবন দিবার চায়। और वो किससे हमको बचाना है? তো আর কি উহাই কি থাকি বাঁচাবে আমাক। तो वो बुरा चरवाहा से हमको बचाना चाहता है। আর উহাই হচ্ছে খারাপ রাখালের হাত থেকে আমাক বাঁচাবে।
तो वो खराब रखवाला या खराब चरवाहा कैसा है जरा अभी हम देखेंगे। তো আমার হলো দেখমু খারাপ রাখালের বিষয়ে। তো খারাপ तो রাখাল কেমন হয়? 3 पद में हम लोग देखते हैं, खराब रखवाला के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ৩ পদে দেখমু ভেড়ার খোয়া যায় পাহারা দেয় আর উয়ার রাখালোক দুয়ার খুলি দেয়। ভেড়ালা উয়ার 3 हाँ 3 पद में, सॉरी सॉरी, और 3 पद, पहला पद है फर्स्ट वर्स, एक पद में हम लोग देखते हैं वो खराब रखवाला। যিশু কইলেক মুই তোমার লাগ শোচাং করি কুবার ধরছুম যে কাঙো দুয়ার দিয়া না সন্ধ্যায়া অন্য পাক দিয়া ভেড়ার খোয়ারত সন্ধ্যায় ওই চোর আর ডাকু। हाँ, तो ये बुरा रखवाला कहाँ से आता है? वो द्वार से नहीं आएगा, वो दीवार चढ़ के वो एक पीछे का रास्ता ढूंढ के वो अंदर आने का कोशिश करेगा। তো খারাপ রাখাল তো দুয়ার দিয়ে আসে না অন্য পাক দিয়ে আসে, হয় দুয়াল টপকে আসে না অন্য অন্য পাক দিয়ে। और वो खराब चरवाहा क्या करने आया है? আর ওই খারাপ রাখাল কি করার জন্য আসে? वहां पर लिखा 2 शब्द है वहां पर, वो एक चोर है और वो डाकू है। আর খারাপ ওই চোর না হলে ডাকু। अभी খারাপ चोर और डाकू में फर्क हम लोग जानते हैं। চোর আর ডাকুর ফারাক আমরা জানি। चोर जो है सिर्फ चोरी करता है, चुपके से चोरी करके निकल जाता है। চোর যেগুলা হয় চোর যেগুলা চুর করে আর চলে যায়। लेकिन डाकू जो है वो पहले आपको मारेगा, बुरे तरीके से मारेगा। अगर अगर चाहता है तो वो आपका हत्या भी करेगा, उसके बाद चोरी करेगा। ডাকু যায় ওই আসি আগত মারিবে, তারপরে ও চাইলে হাড্ডি টাড্ডি ভাঙি দিবে, তারপরে ডাকাতি করবে। तो इस प्रकार से ये जो खराब चरवाहा जो है, ये चोर और डाकू है। তো এরকম যে খারাপ রাখাল আছে ওই চোর আর ডাকু। और ये खराब चरवाहा जो है 5 पद में लिखा है कि एक अजनबी है। খারাপ রাখাল যে আছে ওই আমার ভালো 5 পদের লেখা আছে। वहां 5 पद में, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे। पराये होता है ये। উমরা কোনোদিনও অচেনা মানুষের পাশে যাবে না, বরং উমরা ওটে হাত উয়াটে হাতে পালে যাবে। तो ये पराये का मतलब जो जिसके बारे में हमने कभी देखा नहीं या सुना नहीं। जो পরে মানে অন্য পরে মতলব আমরা যাক দেখি নাই কোনোদিন, জানি না, অচেনা। तो इसके पीछे अगर हम लोग नहीं जाना चाहिए। ইয়ার পাছত আমার যাওয়া উচিত নয়। और ये क्या उसका उद्देश्य और लक्ष्य एक ही है। উহার উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য একই। वो उसका लक्ष्य क्या है? 10 पद में हम लोग देखते हैं। আর উহার লক্ষ্য কি আমার 10 পদের দেখুন। वो चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। চোর খালি চুরি খুন নষ্টামি এগুলা করিবার উদ্দেশ্যে বাদে আইসে। तो अभी प्रश्न शायद आपके मन में उठ रहा होगा कि ये बुरे चरवाहा कौन है? তো তোমার মনে তো এইটা প্রশ্ন আসবে যে খারাপ রাখাল কায়। और ये खराब चरवाहा जो है आज इस दुनिया में हम लोग हर जगह में देखते हैं। তো এরকম খারাপ রাখাল আমরা এই দুনিয়াত মেলা জায়গাত দেখি পাই। और ये खराब चरवाहा जो होते हैं, ये सच में आपका फायदा के लिए नहीं आते हैं। যে খারাপ রাখাল যায় আছে তাই আমার ভালোর জন্য আইসে না। वो शायद साधु के वस्त्र में आ सकते हैं, हमको कुछ सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। আর ওয়াই তো সাধুর বস্ত্র পিন্দিয়া আমার আশীর পায়।
জ্ঞান चाहे দিবার বাদে। वो कोई कॉलेज का प्रोफेसर के वस्त्र में आ सकते हैं आपको झूठ सिखाने के लिए और कुछ ईश्वर के बारे में बुरा शिक्षा देने के लिए वो आ सकता है। আর ওই কলেজের প্রফেসরের পেজ ধরে আসি পায় আমাকে শিক্ষা দিবার পায় যে ঈশ্বর বুড়া খারাপ খারাপ শিক্ষা দিবার বাদে। या फिर वो किसी किताब या कोई यूट्यूब वीडियो भी हो सकता है जो सिर्फ झूठ और खराब चीजें फैला रहा है। তো এরকম কোনো বইও হইতে পারে বা মোবাইলের ইউটিউব ভিডিও হইতে পারে যে খারাপ খারাপ শিক্ষা দেয়, और যে ये মিথ্যা শিক্ষা দেয়। इस प्रकार के लोग आपका भला नहीं चाहते, आपका नुकसान होना चाहिए। এরকম মানুষই আমার ভালো চায় না, আমার খারাপই চায় উল্টা। आपका पैसा लेगा আমারটা টাকা নিবে, और आपका समय लेगा তো আমার সময় নষ্ট করবে। और अगर हो सकता है वो आपको घात भी कर सकता है। ও ওই আমাক ওয়ার ওয়ার লোক পরিত্রাণ দেয়। तो इनसे हम लोगों को बचना है, তো এরকম লোকের এরকম রাখালেরটা থাকি আমার বাঁচি নিবে। क्योंकि ये 13 पद में देखो वो किस आपका बिल्कुल चिंता नहीं करता है। তো এরকম রাখাল আমার কোনো চিন্তা করে না। देखो 13 पद को हम पढ़ते हैं, वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों का चिंता नहीं। খালি মজুরির বাদে এই যেই রাখাল কাম করে ওই নিজের রাখওয়াল না হয়, আর ভেড়ালা উয়ার নিজের না হয়। নেকড়ে বাঘ আসির দেখলে কালে উয়াই ভেড়ালা থুয়ে পালে যায়, কেননা উয়াই খালি বেতন পাওয়ার বাদে এই কাম করে, আর ভেড়ালা চিন্তাও করে না। तो ऐसे लोग जो है सिर्फ वेतन के लिए काम करते हैं। जब समस्या आता है आपके जीवन में, अगर आप उनको बुलाएंगे, बोले अरे मेरे पास टाइम नहीं, जाओ निकल जाओ यहाँ से। তো এরকম লোক খালি বেতন পাওয়ার জন্য কাজ করে। তো আমার अभी জীবনে যেগুলো সমস্যা হয়েছে তো ওয়াই পালে যায়, কয় যে টাইম নেই আমাকে। अभी ऐसा है कि देखो डॉक्टर को हम लोग पैसा देते हैं और हमारा जो भी समस्या बीमारी हम डॉक्टर को बताते हैं। তো আমার কোনো অসুখ হইলে ডক্টর পয়সা দেই, ভিজিট দেই, আর আমার অসুখ দেখাই ডাক্তার जितना दिन हम সমস্যা দেখাই। पैसा देगा वो आपका इलाज वो देखेगा करेगा। তো আমরা যদি পয়সা দেই তাহলে ডাক্তার দেখিবে আমার। संकट के समय अगर हम उनको फोन करेंगे, अरे मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, बताओ कौन सा दवाई लेना है या क्या करना है, डॉक्टर फोन नहीं उठाएगा। তো আমার জেলা সমস্যার সময় যে কমু যে আমার বেটার অসুখ হয়েছে, সেলা ডাক্তার ফোন উঠায় না, तो উঠাবে वो না। डॉक्टर सिर्फ आपका पैसा चाहता है। তো ডাক্তার খালি আমারটা টাকা চান দেয়। हाँ, तो इस प्रकार के जो लोग हैं संसार में भरे हुए हैं। তো এরকম এরকम লোক দিয়ে আমার এই দুনিয়া ভর্তি আছে। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है कि अच्छा चरवाहा क्या है और खराब चरवाहा कैसा है। তো প্রভু যিশু আমাকে দেখায় যে ভালো রাখাল কেমন আর খারাপ রাখাল কেমন। तो अच्छा चरवाहा जो है उसके कार्य से और उसके शब्दों से हम लोग पहचान में आते हैं। তো ভালো রাখাল উয়ার কাজত আর উয়ার উয়ার কথাবার্তাতে আমার চিনুন। देखो वर्स 21 21 में हम लोग पढ़ते हैं कि और औरों ने कहा ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा है, क्या दुष्ट आत्मा अंधों को आंखें खोल सकती है। কিন্তু উয়াই তো অপদেবতা ধরা মানসির নাখান কথা না কয়। অপদেবতা কি কানাক দেখিবার শক্তি ফিরি দিবার পারে? तो प्रभु यीशु मसीह अच्छा काम किया, अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चलने दिया, ये सब अच्छे बातें, इसलिए हम लोग जानते कि वो अच्छा चरवाहा है। তো প্রভু যীশু খ্রিস্ট অন্ধক দেখি শক্তি দিছে, চক্ষু দিছে, আর যার ল্যাংড়া উহাক চলার শক্তি দিছে। তো আমরা দেখি পাই যে যীশু খ্রিস্ট বিভিন্ন কাজ করছে, ভালো কাজ। और जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है वो बहुत ही अच्छा है।
আর যে শিক্ষাগুলা প্রভু যিশু দিছে ওগুলা সবই ভালো। तो इस प्रकार से हम लोग पहचान जाते हैं कि अच्छा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। তো এইরকম ভাবে আমরা জানি পাই যে ভালো রাখাল প্রভু যীশু খ্রিস্ট। तो अभी हमने देखा अच्छा चरवाहा कैसा है, बुरा चरवाहा भी हमने देखा है। তো আমরা এলা দেখলি যে ভালো রাখাল কেমন হয় আর খারাপ বা মন্দ রাখাল কেমন। तो हम लोग, आप और मैं कौन है फिर इसमें? তো তোমরা আর আমরা কেমন? हम लोग ये भेड़े हैं। আমরা হলি এই ভেড়ার মতন। और ये भेड़े जो है ये कैसे होना चाहिए? আর এই ভেড়া যে ভেড়া কেমন হবার লাগবে? तो सबसे पहले हमने देखा, ये 3 पद में हमने देखा कि जो भेड़े जो है वो चरवाहा का शब्द सुनता है। আর ৩ পদত আমরা দেখলি যে ভেড়া যে আছে উয়ায় রাখালের গোলার আওয়াজ চিনে। तो इसका मतलब प्रभु का वचन आपको सुनना जरूरी है। তো ইয়ার মানে যে এই প্রভুর বাক্য আমাক শুনি নেকবি। तो दुनिया में अभी बहुत सारे आवाज है, यूट्यूब है, और यूट्यूब में ऐसे ऐसे लोगों का आवाज भरा हुआ है। अब किसका आवाज सुनने वाला है? তো এরকম দুনিয়াত বা মোবাইলত ইউটিউবত মেলা মেলা আওয়াজ আছে। তো তোমরা কার আওয়াজ শুনবেন? किसका आवाज आपके कानों में ज्यादा आ रहा है? তো কার আওয়াজ আমার কানত বেশি আইছে? क्या परमेश्वर के शब्द, प्रभु का शब्द आपके कानों में आ रहा है? কি প্রভুর আওয়াজ আমার কানত আইসেছে? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को डेली सुन रहे हो? কি আমরা প্রত্যেকদিন প্রভু যীশু খ্রিস্টর আওয়াজ শুনি পাচ্ছি? तो हमको हमारा प्रभु अच्छा चरवाहा का शब्द को सुनना जरूरी है। তো আমার প্রভু ভালো রাখালের আওয়াজ শুনে প্রয়োজন। और 4 पद में हम लोग क्या लिखता है, वो भेड़ क्या करता है? वो उसके पीछे पीछे चलता है। আর ৪ পদ আমরা দেখি সেই ভালো ভালো যায় ভেড়া তাই সেই রাখালের পাশে পাশে যায়। अभी ভালো রাখালের পাশে পাশে যায়। आप किसके पीछे पीछे जा रहा है? তো আমরা কার পাশে পাশে যাচ্ছি? अगर बॉलीवुड के सुपरस्टार के पीछे पीछे जाएंगे भाई, आपका भी अवस्था उनके जैसा ही होगा। তো আমরা যদি বলিউডের সুপারস্টারের পাশে পাশে যাই তাহলে আমার আওয়াজও আমার অবস্থা ওরকম হবে। एक तो बॉलीवुड सुपरस्टार ने तो सुसाइड कर लिया। তো এরকম আমাদের এক একজন এইরকম সুপারস্টার আছে জয় সুইসাইড করছে। एक दूसरा सुपरस्टार ने अपना पत्नी को डिवोर्स कर दिया। আর একজন সুপারস্টার আছে যে ওর বউ ডিভোর্স করে দিছে। और एक बॉलीवुड का सुपरस्टार ने गाड़ी चलाया और गाड़ी इतना तेजी से चलाया कि लोगों के ऊपर उसने गाड़ी चलाया और उनको मार दिया। তো আর একজন সুপারস্টার আছে ওই পুরা স্পিডে গাড়ি চালাইছে আর মানসিক মারি ফেলাইছে। तो क्या हम इनके पीछे जाएंगे? কি আমরা কি ইয়ার পিছনে যাবো তাহলে? इनके जैसे हम लोग बनेंगे? তো ইয়ার মতো হমু কি হামা? किसके जैसे हमको बनना है? কার মতো হামা হবার নাকি? हम अपना अच्छा चरवा मतलब प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना है। তো আমার ভালো রাখওয়াল প্রভু যীশু খ্রিস্টের মতো হবার নাকি? और वो 5 पद हमने वो पढ़ लिया, वहां पर हम एक अजनबी, एक पराये आदमी जिसको हम नहीं जानते उसके पीछे हम नहीं जाएंगे। তো ৫ পদ লেখা আছে যে একজন অচিনা রাখওয়াল উহার পাশ থেকে আমরা যাবো না। अभी हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया, हमने उसका शिक्षा को देखा है कि वो कितना अच्छा है, तो हम उसके पीछे जाएंगे। তো আমরা এলা দেখছি যে প্রভু যীশু খ্রিস্টের শিক্ষা প্রভু যীশু খ্রিস্ট ভালো। তো আমরা প্রভু যীশু খ্রিস্টের পাশ থেকে যাবো। तो ऐसा लिखा है वो 5 पद में, अगर वो पराया आदमी आएगा तो हम उससे भागना भागना चाहिए, उल्टा दिशा में जाना चाहिए। তো এরকम অচেনা লোক আসলে আমরা উড়তে থাকি পালিয়ে যাবো আর উড়তে থাকি অন্য 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 রাস্তায় যাবো। और कोई अगर आपको खराब चीजें दिखा रहे हैं, वो कोई बोलेगा ड्रग्स ले लो भैया, ये गांजा पियो, गांजा से बहुत अच्छा
आपको अच्छा लगेगा, ये खाओ। तो भाई ऐसे लोगों से हमको उल्टा दिशा में भागना पड़ेगा। তো এরকম লোক যায় হামাক কবে যে গাঞ্জা খাও, ড্রাগস খাও, তো ওটা থেকে হামাক পালে নাকবে, ওটা থেকে অন্য অন্য রাস্তা যাবার নাকবে। क्योंकि ये सब चीजें हमारा नॉर्थ बंगाल में सब्जी मार्केट में भी आपको ये गांजा मिलता है। তো আমার এই উত্তরবঙ্গ তো সবটাই এরকম পাওয়া যায়, সবজি বাজারে তো পাওয়া যায়। तो इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए भाई, कहाँ किसके पास जाएंगे और क्या किसके पीछे हम लोग जाएंगे। তো এর জন্য আমার সাবধান হবার নাকবে যে আমার কার পাশে যাবো। क्योंकि संसार जो है बुरे लोगों से, बुरे चीजों से भरा हुआ है। তো एरकम এই দুনিয়া খারাপ জিনিস দিয়ে ভর্তি আছে, খারাপ মানুষ দিয়ে ভর্তি লাগিছে। तो जो भेड़ जो है फिर कैसे रहना चाहिए फिर अभी। তো এই ভেড়া তো কেমন কেমন করে থাকি নাকি ভেড়া? अभी ये हम लोग पढ़ते हैं, देखो, आई एम लुकिंग फॉर द वर्स। 10 पद के आखिरी भाग में वहां पर ऐसे लिखा है, आई हैव कम सो दैट दे मे हैव लाइफ एंड हैव इट इन अबंडेंस। 10 पद का आखिरी लाइन पढ़ो, वहां क्या लिखा है। 41, 10 का 10। 10 का 10। চোর খালি খুন নষ্টামি এগুলা করির উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যের বাদে আইছে, মুই আচ্ছুং যাতে উমাল্লা জীবন পায় আর সেই জীবন হবে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। तो जीवन कैसा है, मैं ऐसा लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। আর উমাল্লা জীবন পায় আর সেই জীবন হবে আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। प्रचोर, प्रचोय पाए, हाँ, प्रचोय जीवन पाए, बहुत जीवन पाए। হ্যাঁ, অনেক জীবন, অনেক क्या बोला, बहुत जीवन पाए। हाँ, हिंदी में बहुतायत जीवन पाए, ও बांग्ला में वो काकू पढ़ रहा है, हाँ, অনন্ত জীবন পায়। अनंत जीवन नहीं, ও, जोरे पढ़ो और एक बार पढ़ो बांग्लादेश, जोरे पढ़ो। চোর চোর আইসি কেবল যেন চুরি বদ্ধ ও বিনাশ করিতে পারে, আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়। उपचय पाए, উপচয় পায়। हाँ। तो मतलब ये क्या है, बहुतायत का जीवन क्या है फिर। অনেক বহুত বহু অনেক দিনের আয়ুর জীবন, अनेक हाँ। दिन नहीं, अनेक दिन नहीं, तो ये जीवन जो है मतलब संतुष्ट जीवन हो सक, हम बोल सकते हैं। এই জীবন শান্তিপূর্ণ জীবন, और इंग्लिश में স্যাটিসফাই। सेटिस्फाइड है, लेकिन इंग्लिश का शब्द जो है अबंडेंट, मतलब बहुत ही अच्छा जीवन है। খুবই ভালো জীবন। तो ये बहुत अच्छा जीवन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। তো এই ভালো জীবন কেমন তা আমরা বুঝার চেষ্টা করব। अभी इसमें यहाँ पर इस अध्याय लास्ट में एक आदमी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का नाम आता है। তো এই অধ্যায়ের শেষত বাপ্তিস্মা দাতা যোহনের নাম আইছে, এটি দেখি ভাই। तो वर्ष 41 में आपको बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का नाम दिखता है। তো 41 পদত আমরা বাপ্তিস্মা দাতা যোহনের নাম দেখি ভাই। तो देखेंगे, और बहुतेर उसके पास आकर कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था। তো অনেক মানুষই যোহনের বিষয়ে কইছে যে যোহন কোনো অচানক চীনের কাম করে নাই, কিন্তু উই এই মানসিটার বিষয়ে যেগুলা কথা কইছিলে সেগুলা সগই সোচাং। अभी याद करो, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जीवन जल्दी खत्म हो गया। वो
प्रभु यीशु मसीह से पहले उसका गला काट दिया गया था। তো আমরা জানি যে বাপ্তিস্মাদাতা যোহনের উম, জীবন যে ওয়াক তাড়াতাড়ি মারি ফেলা হয়েছে, ওর গালা কাটি দেওয়া হয়েছে। और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बहुत अच्छा प्रचारक था। আর বাপ্তিস্মাদাতা যোহন ভালো একজন প্রচারক ছিল। और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य जो 12 जन जो थे, सबसे पहले वो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का शिष्य था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। প্রথমে বাপ্তিস্মাদাতা যোহনের শিষ্য ছিল, তারপরে প্রভু যীশু খ্রিস্টের পিছনে চলিয়ে লাগছিল। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का मृत्यु 35 साल के पहले वो भी मर गया। 34 साल का था तभी वो उसको मार दिया गया था। তো বাপ্তিস্মাদাতা যোহনক যেলা 34 বছর 34 বছর বয়স হয়েছিল, তো সেলাই ওকে মারি ফেলা হয়েছিল। तो हम क्या कह सकते हैं, उसका जीवन जो है बहुत अच्छा जीवन था क्या? তো আমরা কি কবার পাই যে ওর জীবন খুব ভালো ছিল? क्योंकि यहाँ पर वो क्या 10 पद में हमने लिखा है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाते हैं वो बहुतायत का जीवन पाएगा। क्या बोला फिर से अंकल बोलिए। वो 10 पद लास्ट लाइन में जो क्या क्या लिखा है वहां पर, कोई पढ़ो। ও, তো প্রভু যীশু খ্রিস্টের পিছনে যা আসিবে সেই জীবন হবে ভালো। ओके, तो ये कितना अच्छा जीवन था उसका। बादल सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, मेरा डेटा खत्म हो गया नहीं, डेटा इसीलिए। खत्म हो गया? और सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं चलेगा, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। तो हाँ तुम्हारा काट काट के आ रहा है इसलिए। वो मेरा कट कट के आ रहा है। हाँ ओके ठीक है, मैं जल्दी से खत्म कर देता हूँ। तो बपतिस्मा हाँ, देने वाला यूहन्ना ने आज्ञा पालन किया। বাপ্তিস্মা দাতা তার আজ্ঞা পালন করছে ওর। ओके, और क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को सिखाया, उसका जीवन जो था भरपूर जीवन उसको मिला। আর উহাই প্রভু যীশু খ্রিস্টের সম্বন্ধে প্রচার করছে, আর উহার জীবন ছিল খুবই ভালো। और वो भी एक अच्छा चरवाह का एक क्या नमूना है। আর এটাও একটা ভালো और जो जो खराब चरवाह जो है यहाँ पर, ये यहूदी लोग हैं। ठीक है, अभी उसका नेटवर्क चला गया। तो प्रभु यीशु मसीह यही हम लोगों को सिखा रहा है कि हम लोग इस संसारिक जो भी धर्म हम लोग इस दुनिया में पाते हैं, ये सारे धर्म भी एक प्रकार के बुरे चरवाह हैं। उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो वो हमारा नाश करेगा, कोई फायदा हमको मिलने वाला है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने से ही हमको भरपूर जीवन मिलेगा, संतुष्ट जीवन मिलेगा, और वो हमको अनंत जीवन भी देगा। तो भरपूर जीवन इधर इस दुनिया में, अनंत जीवन जो है इस दुनिया छोड़ने के बाद भी। तो क्या आप भरपूर जीवन जी रहे हैं? क्या आपने ये अनंत जीवन पाया है? तो ये प्रश्न जो है ये आपके मन में रखना चाहिए कि क्या मैं सचमुच प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ, और क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा चरवाह जैसा मैंने स्वीकारा या नहीं। तो ये थोड़े से बातें जो है हमने यहाँ पर इस 10वां अध्याय में देखा कि प्रभु यीशु मसीह ही अच्छा चरवाहा है। तो यही बातों से मैं समाप्त करता हूँ।